Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and today we will read chapter 2 of the book The Alien Hand of class 7, and the name of the chapter is Bringing Up Curry. So who is Curry? We will learn by these pointers. Curry, a 5-month-old elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry कौन है? He is a 5-month-old elephant जो किसके साथ रहता है और किसके साथ बड़ा हो रहा है? His 9-year-old friend and a keeper. Keeper देखभाल करने वाला. Curry does not eat too much. वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता. Just about 16 kgs of delicious twigs a day. एक दिन में about 16 kgs of twigs a day. Twigs मतलब basically the small trunk, छोटी टहनियाँ. Playful and sensitive, Curry saves a boy from drowning. करी इज़ वेरी प्लेफुल एंड वेरी सेंसिटिव इन नेचर और वो एक बच्चे को बचाता है ड्रोनिंग जो डूब रहा होता है. ओके, बाय द वे स्टूडेंट्स, अ यूजुअल एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट ईट्स अबाउट 100 kgs of twigs a day, 100 kgs of leaves or 100 kgs of twigs a day. He is a baby elephant, that's why he is eating just 16 kgs. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. 9-year-old friend के पास जब करी आया था तो he was just 5 months old and he was actually big. 5 महीने के हिसाब से वो बड़ा था, इतना कि if I could reach his back if I stood on tiptoe. अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो he can reach to his back. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और लगभग 2 साल तक वो उतना बड़ा दिखता रहा. We grew together, हम साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. इसीलिए शायद मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि कितना बड़ा है वो. हाँ. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on a thick tree stump so that he could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about. Because Curry was very tall, so he used to live in a pavilion. Pavilion is a space to live, basically the any space where a particular animal lives. Or pavilion is a word that is specially used for cricketers, the area that is made for cricketers to stay for some time, that is called pavilion. लेकिन यहाँ के context में pavilion is a name given to the space under a thatched roof. Thatched roof मतलब एक ऐसा छत जो बैम्बू से बना हो, which rested on thick tree stump. Tree stump क्या होता है? टूटे हुए पेड़ का ठूठा. बेसिकली कोई बड़ा सा पेड़ जो टूट गया हो तो उसकी टहनी, उसका जो क्या कहते हैं उसको, द ट्रंक ऑफ दैट ट्री, उससे एक रूफ बनाया हुआ था ताकि जब भी करी उनके पोल्स को टच करे, उनके पोल्स को बम्प करे तो वो चीज़ गिरे ना, और वो चीज़ गिरे ना करी के ऊपर और वो चीज़ टूटे ना. इसीलिए बहुत ही मोटे पेड़ के ट्रंक से उसको बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली बार अगर करी ने कुछ किया था तो वो क्या था? ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अ बॉय. एक बच्चे की जान बचाई. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of twig a day to chew and play with. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, ना ही उसको कभी ज़रूरत पड़ी कि ही हैव टू ईट 40 pounds of twigs a day. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. मैं रोज़ सुबह उसे नदी के पास ले जाता था नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो मिट्टी के पास बैठ जाता था जब मैं उसको 1 घंटे तक नहलाता था. बाय हाउ? बाय रबिंग द क्लीन सैंड. जो साफ मिट्टी होती थी उस पर रब करके उसको नहलाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो काफ़ी देर तक पानी में बैठा रहता था. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. आने के बाद उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती थी, बहुत चमक रही होती थी और वो बहुत खुश हो जाता था जब मैं सारा पानी उसके बैक से रब करता था.
Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. फिर मैं उसको उस जंगल में छोड़कर अम, जंगल के किनारे छोड़कर उसके लिए लशियस ट्विग खाने लायक जो लकड़ियां होती हैं वो लेने चला जाता था उसके डिनर के लिए. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatch because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. Hatchet का मतलब होता है hatchet. Okay. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. एक बहुत hatchet basically instrument is basically something that is used to cut the twigs, or it take about half an hour. It was not an easy job. Hatchet is called a small axe, छोटी सी कुल्हाड़ी, because if the twig is mutilated an elephant will not eat it. अगर एक जो लकड़ी है वो म्यूटिलेटेड मतलब कटी फटी या अजीब सी लिख रही हो, then the elephant is not gonna touch it, not gonna eat it. It was not an easy job to get twig and sapling for curry. करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स लाना वॉज नॉट अ इजी जॉब. बहुत मेहनत का काम था. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग. और उसके लिए मुझे सबसे डेलिकेट और सबसे छोटे ट्विग्स लाने पड़ते थे. As he was very fond of the young branches and the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March. और क्योंकि उसको banyan tree के leaves बहुत पसंद थे तो मैं एक दिन वो इकट्ठे कर रहा था. When I suddenly heard Curry calling to me in the distance, तभी मैंने सुना कि करी मुझे कुछ दूरी से बुला रहा है. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. और क्योंकि वो काफ़ी छोटा था तो वो एक एलिफेंट से ज़्यादा एक बेबी की आवाज़ लग रही थी. आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मैं जल्दी से वहाँ गया और वहीं गया जहाँ मैं उसको छोड़कर आया था, लेकिन वो वहाँ नहीं था. I looked all over, but I could not find him. मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे करी नहीं मिला. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. मैं पानी के पास गया और मैंने देखा कि कुछ काला सा, क्या नहीं पता, वो सरफेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मतलब कुछ दिक्कत है. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. तब वो जब थोड़ा सा ऊपर उठा तो मैंने देखा कि it is the trunk, सूंड है किसकी, my elephant करी की. I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than me. मैं पानी में कूदकर उसको नहीं बचा सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था मुझसे. But I saw his black rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने किनारे की तरफ आने की हिम्मत करने लगा. Then still trumpeting, he pushed me into the water. और अभी ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द वाटर, उसने मुझे पानी की तरफ खींच लिया. एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और मैं भी उस पानी में गिर गया. आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑन द रिवर. ही हैड नॉट ऑल्दो टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट. मैंने देखा कि एक लड़का है जो पूरा नीचे तक नहीं पहुंचा है लेकिन वो पानी में डूब रहा है. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. मैं पानी से बाहर आ गया और मैंने देखा कि करी अभी भी पानी में ही है और उसका हाथ मेरी तरफ ऐसे स्ट्रेच हो रहा है जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो. आई डाइव डाउन अगेन, मैं फिर से नीचे गया. नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, आई एम नॉट अ गुड स्विमर. I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. मैं ज़्यादा किनारे तक नहीं स्विम कर सकता और वो जो पानी का धीमा सा करंट, स्लो करंट, दैट इज द धीमी वेव्स, स्मॉल वेव्स वर ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे नीचे की तरफ धकेल रही थी. सीइंग अस ड्रिफ्ट इन द करंट, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again.
करी क्योंकि बच्चा था तो वो बहुत ज़्यादा स्लो था, पॉन्डरस मतलब बहुत ज़्यादा धीमा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। वो जल्दी से खड़ा हुआ, उसने फिर से पानी में आधे पानी तक आया और उसने फिर से स्ट्रेच करा अपने ट्रंक को पहले की तरह। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट बट इट स्लिप्ड। मैंने अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करी पर वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मुझे लगा मैं फिर से पानी के अंदर जा रहा हूँ, बट दिस टाइम I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the water bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. इस बार मैंने देखा कि पानी है जो ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैंने खुद को नीचे की तरफ धकेला, अपने पैरों को डबल करा, डबल मतलब दोनों पैरों को दूर दूर कर दिया और मैंने उस बच्चे को पकड़ कर रखा जो पानी में डूब रहा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। जैसे जैसे मैं पानी से ऊपर उड़ता, मुझे लगा मेरे नेक के अराउंड देयर इज अ लैसो, देयर इज समथिंग दैट इज सराउंडेड बाय ऑन माई नेक। दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कोई वाटर एनिमल विल स्वेलो मी, मुझे निगल लेगा। आई हैड करी स्क्वीकलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ एश्योर। तो मैंने पाया कि वो कौन है, वो करी है, उसका ट्रंक है जो मेरे गर्दन की तरफ है और उसने हम दोनों को किनारे में खींच लिया। Curry became fond of ripe bananas. He believed in self-help, much to the discomfort of his friend. With quite dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. करी को क्या हो गया, टाइम के साथ साथ राइप बनानास, पके हुए केले काफ़ी पसंद आने लगे। वो सेल्फ हेल्प में बिलीव करने लगा और चाइडिंग को एक्सेप्ट करने लगा। चाइडिंग जो प्यार उसे मिलता था। Curry was like a baby. He had to be trained to be a good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी एक बेबी ही था, उसको ट्रेन करना पड़ता था अच्छे बनने के लिए, क्योंकि अगर वो बदमाशी कर रहा है और अगर आपने उसको नहीं रोका तो वो और ज़्यादा बदमाशी करता। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन की बात है, किसी ने उसको खाने के लिए कुछ बनानास दे दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, तो उसको बहुत जल्दी बनाना से प्यार हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. हम डाइनिंग एरिया में एक बड़े से प्लेट पर फ्रूट्स रखते थे। एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे बनानास डिसअपियर हो गए और मेरी फैमिली ने सर्वेंट्स को बहुत डांटा। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद फिर से ऐसा हुआ। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। इस बार जो ब्लेम था वो मुझ पे डाला गया और मैं जानता था मैंने ये नहीं करा। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट एंड द सर्वेंट, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। मैं अपने पेरेंट्स पे इतना गुस्सा हुआ और सर्वेंट्स पे, मैं श्योर था कि उन्होंने ही फ्रूट्स को कहीं रखा है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। उसके बाद फ्रूट्स फिर से डिसअपियर हुए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन। मैंने देखा करी के पेविलियन में वो बनाना स्मैश किया हुआ रखा हुआ है। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि उसने कभी फ्रूट्स नहीं खाया, वो हमेशा ट्विग्स की जिद करता था, ट्विग्स पे ही रहता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक दिन मैं बैठा हुआ और सोच रहा था कि फ्रूट्स लूँ या ना लूँ अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना, तो मैंने देखा कि विंडो से एक बड़ी सी काली सी चीज़ आई है, मच लाइक अ स्नेक, सांप की तरह लग रही है, और बनानास डिसअपियर हो गए। I was very much frightened because I have never seen snakes eat bananas and thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत डर गया, मुझे लगा ये पक्का कोई कोई बहुत ही खतरनाक सा सांप होगा जो आया और फ्रूट्स ले गया।
I crept out of room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. मैं इतना डर गया कि मैं घर से बाहर भाग गया ये सोचकर कि फिर से स्नेक आएगा और हम सबको खा जाएगा. As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि करी अपने पेविलियन की तरफ जा रहा है और मैंने सोचा कि अपने खुश करने के लिए खुद को मैं उसके पास जाता हूँ. आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन. मैं पेविलियन में उसके पास गया एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. और मैंने वो देखा कि वो बनानास खा रहा है. आई stood still in astonishment. The bananas were lying strewn in all around him. और मैं दंग रह गया ये देखकर कि इसके चारों तरफ बनानास रखे हैं. See, he stretched out his trunk and reached one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Curry was the thief. उसने फिर अपनी ट्रंक को बहुत दूर तक डाला बनाना लेने के लिए और तब मुझे लगा द थीफ वॉज करी. करी ही सारे बनानास चुरा रहा था. आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I had eaten all the fruit these many weeks. मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये मैं नहीं ये करी था जो इतने हफ्तों से सारे फ्रूट्स खा रहा था. Then I scolded him. मैंने उसे डांटा. For elephants understand word as well as the children. I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. मैंने उसे डांटा क्योंकि एलिफेंट्स और चिल्ड्रन में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी शब्दों को समझ पाते हैं. और मैंने कहा कि अगर अगली बार तुमने चोरी करी तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी. He knew that we were all angry with him, even the servant. His pride was so injured and he never stole another thing from the dining room. उसको पता था हम सब उससे बहुत गुस्सा हैं. उसके बाद उसने कभी डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक यू. और उसके बाद से जब भी कोई उसको कोई फ्रूट देता था तो ही यूज टू स्क्वील, हैप्पी फेस बना लेता था उनको थैंक करने के लिए. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. But if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एनिमल्स का एक नेचर होता है एलिफेंट का बेसिकली कि अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो आप उन्हें पनिश करो, लेकिन अगर आपने किसी बेवजह उन्हें पनिश करा तो वो अपने हिसाब से अपना सारा का सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं. Curry is a fast learner. He mastered all signal and sound he is taught. There is one lesson though that an elephant take 5 years to learn. Curry is no exception. करी एक फास्ट लर्नर है, उसको सारे सिग्नल और साउंड बहुत जल्दी से समझ आ जाते हैं. और एक और बात है कि जब तक कोई एलिफेंट 5 साल का नहीं होता, दे डोंट लर्न द थिंग्स दैट क्विकली. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. Elephant and children are very similar when it comes to their learning. आपको एक एलिफेंट को सिखाना पड़ेगा कब उसे बैठना है, कब चलना है, कब जल्दी चलना है, कब तेज चलना है, कब धीरे. अगर आप उसको बोलोगे धत और उसको कान पकड़ के बिठाओगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा बैठना. ऐसे ही व्हेन यू विल से हिम माली तो वो अपनी ट्रंक फॉरवर्ड करके अपनी सूंड आगे करके चलना सीख जाएगा. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. धत सीखने में उसको सिर्फ 3 हफ्ते लगे, लेकिन माली सीखने में उसको 3 तरह से सिखाना पड़ा. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो why an elephant should be taught to sit down? Because he grow taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 year old you can only reach his back with a ladder. क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता जाता है और अगर आप उसको बिठाओगे नहीं तो आप उसकी केयर नहीं कर पाओगे. It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat so that you can climb upon his back, or who would want to carry a ladder along all the time.
इसीलिए आपको उसको बैठना सिखाना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा सीढ़ियों की ज़रूरत ना पड़े। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है एक एलिफेंट को सिखाने में, दैट इज़ द मास्टर कॉल। बेसिकली व्हेन योर मास्टर इज़ कॉलिंग यू, एक इंस्टेंस होता है, एक आवाज़ होती है, एक सिग्नल। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। 5 साल लग जाते हैं ढंग से सीखने में। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग होलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक and a tiger were fighting with each other. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the star above, you dare not to stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulled down the tree in front of him with his trunk. मास्टर कॉल देना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आप कभी भी जंगल में खो गए, जहाँ कोई रास्ता नहीं है, हर जगह अंधेरा है, तो आप बस एक मास्टर कॉल देते हो अपने एलिफेंट को और वो जहाँ भी होता है वो सारे पेड़ तोड़कर आपके पास पहुँच जाएगा। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, और सारे एनिमल्स डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकी वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ट्रीज जब क्रैश होते हैं तो ऑब्वियसली जो मंकी हैं वो उठ जाते हैं, जो सो रहे होते हैं, और ब्रांच टू ब्रांच जाने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, और आप उन्हें मूनलाइट में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और जितने भी एनिमल्स हैं वो हर डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन ही इज फ्राइटेंड। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट सीन। यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और देखते ही देखते आप देखोगे कि उसने सारे ट्रीज को तोड़ते तोड़ते एक रोड बना दी है जंगल और आपके घर के बीच में। So students, we are done with the chapter. If you will face any kind of difficulty in this chapter, please do comment down below. Thank you.